तो हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। एक्चुअली इट्स आफ्टरनून, मगर हर साल बारिश ऐसा बढ़ते जा रही, सीज़न ऐसा खींचते जा रहे। समर भी लंबा, विंटर भी लंबा, बारिश भी लंबी, सब लंबा लंबा लंबा। एनीवेज, सो टुडेज वीडियो इज स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस। इट्स अ नाश्ते में बिरयानी नहीं खाना, because this is a 1986 Yamaha RD350 LT. That's the low torque, and I just picked it up 3 days back and I've been roaming around, 80s की फील में एकदम बुर 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 कर लेते फुल। खाली एक बेल बॉटम्स की कमी है। So yep, this is the bike, and अब तक मैं फीचर नहीं करा because this bike is considered, यानी सुपर बाइक फिर भी लाइट है। ट्रायल मिल जाता है, ये गाड़ी का ट्रायल मिलना इम्पॉसिबल रहता है, and rightly so because this thing has its own perks which I will explain to you in a minute. So anyways, yes, 1986, it's a locally registered bike, all the papers valid till 24, and there's lots of stuff on the bike which I didn't know was important, जैसा पीछे के indicators और ये tail light is Stanley, made in Japan, and Japan के Mikuni carburetors, and it's got a US spec miles per hour meter, Nippon Seiki Japan something. तो ये सब मैं लेने के बाद मालूम आए ने, these bubble hand grips, most of the stuff is original. Apparently that's a very rare thing to find on these bikes, because this was sold as खैर you know what, let's just बैठ के। इंजन का किल स्विच भी अमेरिकन स्पेक है भाई, माँ की आईने भी ओरिजिनल एकदम खाऊँ एडजस्ट कर लिए। तो खैर अपन ये करे, पेट्रोल खोले, नॉट सो यूज्ड टू किक, बट यप लेट्स होप एक किक में स्टार्ट होती। नहीं, सुबह सुबह चौक देना पड़ता। So let's warm her up a bit. What a hood to ride, man. So anyways, yes, this is a 1986 LT model, and much of this information I should be factually correct, but yeah, all you two-stroke fans can correct me if I'm wrong. So the bike was apparently discontinued in Japan in 76 itself because of the emission norms, and this thing is a fucking pollution bomb. आज BS6 की गाड़ी अगर आज इसको जाते हुए देखे तो सुसाइड कर लेती बाजू से। So that's how it is, because two-stroke engines don't have a valve train, they don't have, it's just a combustion exhaust, दो ही रहते उसके साइकिलां उसमें बुल्ला। Lots of harmful gases get into the atmosphere, but they make shitloads of power, a lot more than four strokes if done right. That's why, because of the emission norms and all, two strokes were never really developed further. उतना उन लोगों का फ्यूचर आगे नहीं बढ़ सका beyond little few bikes. तकरीबन पूरे पुराने छे, and these bikes, trust me, बोल देना वो बीटिंग ही अलग रही थी, बोल दे तो अपने बुढ़े, बीटिंग ही अलग रही थी वाकई गाड़ी की। हालांकि it's a 35-year-old bike now, but still it's a fucking bomb to ride. So yep, So the bike was imported from Japan. It was launched around 22,000 to 23,000 rupees back in the 80s.
जब RX भी बहुत सस्ती 10-12 हज़ार की रहती थी, तो 22,000 for this was a big fucking deal. And needless to say, few people who loved bikes, they bought it, but वो टाइम पे शौक़ उतने नहीं थे लोगों को. So it didn't exactly have the kind of sales figures it should have had, because राजदूत गाड़ी भाई का माइलेज ही नहीं थी बोल के. और भाई इंडिकेटर डालते बाजू घुस जाते हैं. तो राजदूत गाड़ी भाई माइलेज ही नहीं देती है वो बोल के भयंकर. मार्केट भी डाउन थी तो एक टाइम पे 10-12 हज़ार में भी कोई लेने रेडी नहीं रहते थे, बिकॉज वो टाइम पे द माइलेज ऑन दिस वाज टेरेबल. जैसे 20 देती थी गाड़ी, आई डोंट नो 15-20, आई डोंट नो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस. आज के ज़माने से सुपर बाइक ओनर के हिसाब से 15-20 का माइलेज इज रेगुलर बॉस, नॉर्मल होता. तो अपने वो गाड़ियाँ भी दे देते, बुला 10 के अंदर भी देते कितने की. तो so bike was way ahead of, I won't say way ahead of its time, because 76 में discontinue हुई जापान में, अपने पास 80s में आई, तो still it was a bomb. मगर वो टाइम पे इंडिया had not seen anything like this before. I mean 80s में क्या था भाई अपने पास, ये था. वो ज़माने में इस पे निकले बोले तो अब वो कॉलेज को पूरे बाइस KTM पे आ रही हैं, ड्यूक 200 पे अपन भर बोल के सीधा निंजा 300 पे एंट्री मारे था, शाट रहा था इस बार. तो वो ज़माने का तो टशन अलग ही था. होगा फकिंग एल्विस प्रेस्ली एंड क्वीन के ज़माने में ये गाड़ी पे फिर रहे. ओ हो टशन कलफ. तो एनीवेज, coming to the point, so Escorts Group India had partnered with Yamaha. They were importing it, and by the time the bike was slowly phased out in 1990, almost 80 to 90% stuff was locally sourced. The bike was locally manufactured. तो आई थिंक खाली इंजन के डल्ले वो भी तकरीबन चीज़ें यहीं बनने लगे थे. तो द लेट मॉडल्स की उतनी वैल्यू नहीं है. जो अर्लियर मॉडल्स है, दे वर फुल जापान, एंड HT स्पेशली द हाई टॉक वर्जन, उसकी ज़्यादा डिमांड है लोगों में, बिकॉज उसका एक इंजन केस पे भी मेड इन जापान ही. वो मोर जापानीज बाइक. लॉट्स ऑफ पीपल डू LT to HT कन्वर्जन्स, ये वो सब चलते रहता. बट यप, and personally, because I was told by Nisar bhai, now Nisar bhai is the expert on two strokes as far as I am concerned. उन्होंने इससे पहले मैं RX खाली भिजा के ज़रा बना के भेजा, वो तो ऐसी शैतान बना के भेजा पूरे शहर को अंगार लगा दी गाड़ी को. So NMW performance. Nisar bhai told me that the LT is actually a much better bike to ride in traffic or city, because the power band on this kicks in early, whereas on the HT the power band is a little delayed. So लॉन्ग पे हाईवे पे HT इज़ मोर फन. बट देन आज के दौर में अब लीटर क्लास चलाने वालों को बुल्ला इसका पावर क्या दिखता. इट इज़ पावरफुल, डोंट गेट मी रॉन्ग. ऑन पेपर 30-35 हॉर्स पावर कुछ है, बट द वेट पुल्स, द बॉडी वेट ऑफ द बाइक एंड 2 स्ट्रोक की पावर डिलीवरी ऐसी है, इवन इन अ स्टॉक फॉर्म. अब जैसा दिस बाइक इज़ ऑन द स्टॉक बोर एंड पिस्टन साइज, डोंट आस्क मी हाउ, इट जस्ट इज़. The stock bore piston पे standard size पे भी this thing is a fucking hoot to ride. I mean obviously you won't get the kick of a 390 or something, but इसका kick is entirely different. The torque with which it pulls, and एक ही gear में जाते ही रहती gear कब उठाना बोल के था दिखता. Now lots of people have ported these bikes, and trust me man, पोर्ट करी हुई आड़ी चलाना वो तो लोहे के टट्टे होना पड़ता. Because stock form में the braking is fuck all. Now for the Indianization, obviously anything we get in India is cost conscious. So obviously the first thing they thought was, अरे गाड़ी भागती मगर रोकना किसको है, माँ की भगाए तो भगाना. We die like real men बोल के पहले डिस्क ब्रेक हटा दिए. That was the most sad fucking part. I mean on a bike this powerful, even for those times, साला इसको डिस्क नहीं दिया यार. वो बाद में RD 400 LC है, वो अलग अलग वेरिएंट्स पे लॉन्च है जापान. बट यहाँ पे जो आई है 350 is like the most bare bones variant without the disc and everything. So yeah, the review of the bike, how the bike in itself is now this is a triple digit number bike, मतलब triple वो लेटर वाली A1123 ऐसा. So these bikes have a lot more value than, अभी हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट, यहाँ वहाँ से कैसे भी माशाल्लाह गाड़ियाँ ले लेके आ जा रही, ले लेके आके इंजन चेसी नंबर या तो चढ़ा दे रहे हैं या वही CC निकाल के यहाँ पे नंबर करा के TS नंबर करा ले रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स स्टूपिड, बिकॉज बस एंटीक चीज़ की वैल्यू इच है
उसमें कितने चीज़ें एंटीक है, जैसा ओरिजिनल पेंट पे. इट्स अ डिफरेंट मार्केट देन द योर रेगुलर यूज सुपर बाइक मार्केट, द एंटीक बाइक मार्केट. जितनी ओरिजिनल है गाड़ी, जितना हर चीज़ ओरिजिनल है, उतनी उसकी वैल्यू रहेंगी. इवन इफ यू वांट टू पिक समथिंग अप, यू रिमेंबर दैट द ओरिजिनल नंबर. अब जैसा इसका AK 1980 है, दैट्स अ फकिंग थग लाइफ नंबर मैन. एंड यू नो ऑनलाइन शो करती है हर चीज़ पूरा अपडेटेड. तो यू नो कोई भी ट्रिपल डिजिट नंबर की जो ये ट्रिपल लेटर वाली गाड़ी रहती, दैट इज OG. कई जने ने तो क्या करते, इंजन चेसी नंबर हम भी इस पे घस दे के दूसरे चढ़ाए थे. दिस थिंग इवन हैज एन एस्कॉर्ट्स का बैज ऑन द फोक. अपेरेंटली दैट्स वेरी रेयर. द कीज आर ओरिजिनल, यू नो. तो है. सो नाउ यस, ये पूरा हो गया RD का. नो कमिंग ऑन टू द बाइक इटसेल्फ, राइडिंग इट, ओ बॉय, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ 80s में वहाँ की क्या टशन रहता था ये गाड़ी पे निकले तो. द पावर, द रोड प्रेजेंस. अब ऑब्वियसली यू नो compared to the other bikes it does look small, but still there's a classic cult feeling when you ride this bike. It has a road presence. It's not tiny by any standards, but you know it looks classy, it looks just amazing. But back then this must have been the S1000 RR of the 80s, you know, in India obviously. गाड़ी है चलाने में, यू नो सरप्राइजिंगली द हैंडलिंग इज़ अमेजिंग, द फ्लिकेबिलिटी इज़ अमेजिंग. खाली वो टायरों की वजह से थोड़ा इन्हें यू नो थोड़ा डर होता, कभी कोने में जाते हैं तो फिसल जाएंगे, निकल जाएंगे, बल्कि व्हेन यू वैक ओपन द थ्रॉटल और व्हेन सडनली यू हिट अ पैच ऑफ डर्ट और समथिंग. सो यू नो विद द प्रॉपर 17-inch टायर्स एंड राउंड प्रोफाइल, 17-inch rims and round profile tires, I think this would do amazing. That's what lots of people do, you know. इसका इंजन ले लेके चेशी में मॉडिफिकेशन करके they build dirt bikes, this that, because this engine fucking amazing man. I used to think RX का इंजन versatile है, but this twin is like just lovely. I mean, अरे स्पीड ब्रेकर है भाई, यार लोड था कुछ ले, no problem. So yeah, now the other part. Okay, and the most funny thing is this is the most, two strokes are the most jugadu bikes you'll ever own, because I'll tell you a simple problem. Okay, अब इसका क्लच है, क्लच इज़ रियली नाइस, मगर क्या हो गया था, जिनके पास से हम लिए गाड़ी रखे क्लच प्लेटां चिपक गए थे, तो हम क्लच प्लेटां खोल के ज़मीन पे घस दिए स्टील प्लेटां. दिस न्यूअर बाइक्स यू गेट डॉट्स ऑन द स्टील प्लेट्स, ऑन दिस ओल्डर बाइक्स अपेरेंटली यू डोंट. वो घस के उसको अनइवन कर दिया. सो यू नो लिटरली क्लच प्लेट रोड पे घस के डाल रहे हैं यहाँ पर, क्लच काम करना चालू कर दिया. सो यू नो दैट्स फकिंग हिलेरियस मैन. आई मीन ऑयल भी इसमें कम ज़्यादा डालो, ज़्यादा डाले तो धुआं छोड़ लेते जाती. बिना नीचे जो चेम्बर में जो ऑयल आता, बिना उसके भी गाड़ी बिंदास चलती. अरे बड़े भाई, तो यू नो आखिरी यू नो ये गाड़ियाँ कैसे चलाओ, अगर अच्छा चला इंजन दबा के चलता. इंजन फोड़ भी लिए फटाफट 2 दिन में इंजन राइट होके पूरे नया इंजन बन जाता है. यू नो you just upsize the bore a little bit, adjust the carbs a little bit, so now you have a bigger cc, more powerful bike. So you know porting की दुनिया तो entirely different है boss. I mean इसका एक अलग मज़ा है obviously two strokes का, but then you know to have this bike in a way wherein आप regularly लेके फिर सकते हैं, it is a pain. because अब इसमें देखो for example अब इसका rectifier fail हुआ था, मतलब मैं लिया तो अच्छा था, suddenly fail हो गया. Then I was told that इस पे Enfield का लगाए थे बहुत जने, so that was the case. निकाल के फिर हम ढूंढ के ओरिजिनल 1200 रुपये में ज़बरदस्त A1 रेक्टिफायर RD 350 का लेके डाले, एंड इट्स बीन रनिंग फाइन एवर सिंस. बिकॉज द बिगेस्ट quirk on this bike is the ignition system. Now I don't really know exactly how it works, but it's called the point system. So there are little clips and points kind of things which rotate along with the crank and magnet, and you know tick 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 create sparks which generate power for the spark plug. So you know you have to adjust that within like 0.40 mm of clearance, and उसका वो गाड़ में दम, it comes under this, तो वो बार बार आउट हो जाते रहते हैं. You know if not done properly, like in the RX there's no CDI unit in this, point system है, तो इसलिए लोग हम बोलते हैं भाई वो point system सेट करने गांड फट जाती है. वाकई गांड फट जाती है. वो बोलते हैं ना हथौड़ी लेके मारने का ही काम है, मगर किधर मारना उसके ऊपर ही पूरे लाखों रुपए की बैठे समझो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गॉट 2 कार्बोरेटर्स, ट्विन कार्ब. वो ट्विन कार्ब्स भी बराबर सेटिंग में सिंक में रहना. यू नो द एयर फ्यूल रेशियो शुड बी प्रॉपर इन बोथ सिलेंडर्स, अदरवाइज इट स्टार्ट्स मिसफायरिंग, या एक सिलेंडर पे ज़्यादा लोड, एक पे कम लोड, यू नो, एंड अल्टीमेटली दैट्स बैड फॉर द इंजन. तो इट ऑल अडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल. अब आप 10 जने मिलकर अलग अलग चलेंगे गाड़ी,
कार्बोरेटर के सेटिंग आउट हो जाते हैं, पॉइंट सिस्टम आउट होता है, इसलिए नो बडी इज़ रियली कंफर्टेबल गिविंग दीज बाइक्स फॉर अ टेस्ट ड्राइव। बोला खुद ही ख़रीदे बाद ही बनाना है इसका वीडियो अच्छा सा। एंड वन मोर थिंग, yes, the parts for this are fucking expensive. I saw some places 76,000 में फोक और डिस्क का किट है जी। वहाँ की R1 टेरिटरी में घुस जा रहे हैं आप फिर, you know, 10,000 में ओरिजिनल इंडिकेटर हैं स्टैनली के, मीटर असेंबली इज 20,000 समथिंग US spec. So you know the boom for these bikes has increased a lot in the past 5 to 10 years. Not exactly 10 years. एक ज़माना था जब 30,000 40,000 50 60 80 1 हेलो यू नो डिमांड बढ़ते 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 अभी तो ऐसा हो गया वहाँ की 3-4 लाख रुपए के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा। उसमें भी पेपरों के गिच्छियाँ, ये गिच्छियाँ, वो गिच्छियाँ। यू नो कुछ ना कुछ रह रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ क्लीन रेट स्पेस। ना केरला वाले तो अलग लेवल पे अलग नशों में जी रहे भाई, 7 लाख 8 लाख। केरला कर्नाटका की दुनिया ही चलक रही थी, वहाँ की रेटें अलग है। यू नो इफ़ इन केस यू वांट टू ओन वन ऑफ दीज नाउ फॉर द न्यू जनरेशन, यू नो लॉट्स ऑफ पीपल आई सी अब who've entered their 20s or just into biking, they don't know what an RD 350 is। तो बच्चा लोग एक बार जाओ सुकून से, जब रात में पप्पा के साथ बैठते हैं, पप्पा से पूछो RD 350 क्या थी, उसकी फीलिंग कैसी थी वो ज़माने में। आई मीन आई फील ओन करो ना को करो, बिकॉज ओनिंग दीज थिंग्स इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब। आपको कॉन्स्टेंटली गाड़ी के कुछ ना कुछ एक यू नो लाइक अ ग्रेट फ्रेंड साइड RD 350 कभी भी पूरे को नहीं बनते ही रहती है हमेशा। तो इज ऑलवेज समथिंग और द अदर यू वांट टू डू। लॉट्स ऑफ पीपल डू द CDI कन्वर्जन, ये कन्वर्जन सिंगल का आप कर देते, यू नो खेलने के लिए। दिस थिंग इज़ लाइक इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म एंड रिलेटिवली अब RX की दुनिया इज चीपर देन अ सुपर बाइक वर्ल्ड, बट RD अगेन यू आर इंचिंग इनटू सुपर बाइक टेरिटरी बिकॉज स्टफ फॉर दिस इज एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू कम बाय। आजकल ओरिजिनल ज़्यादा मिल रहा भी नहीं सामान। तो यू नो जस्ट बी ओन करो ना को करो, एटलीस्ट राइड इट वंस इन योर लाइफ टाइम, बिकॉज ऑलरेडी गाड़ियाँ पूरे ख़त्म हो गई। यू नेवर सी दीज ऑन द रोड्स। मैं खुद लाइफ में 3-4 बार देखा, बोल रहा हूँ है सो वाले भी घर में छुपा के रखते। सो यू नो इट इज़ समथिंग यू शुड एक्सपीरियंस वंस इन योर लाइफ। इट्स एन अमेजिंग बाइक फॉर द टाइम। एंड आज के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो यस द ब्रेक्स आर शिटी। आई मीन फॉर द एफिशिएंसी यू कुड गेट समथिंग अ लॉट मोर पावरफुल। एंड इज़ इट वर्थ द प्राइस? बॉस एंटीक्विटी है, एंटीक चीज़ का प्राइस यू नो कुछ नहीं बोल सकते। क्या हुआ रे भाई, ये ट्रैफिक। सो यप मिली तो भी अगर एंटीक शौक करना एक बार करो। एंड पूरे बच्चे द न्यूअर जनरेशन पूरे अपने KTM बॉयज़, कावासाकी बॉयज़, गो आस्क योर डैड, आस्क योर ग्रैंड डैड about the RD 350, about the bikes of the golden ages. These things are, I mean, बोलते ना मैं जितना बोलता हूँ कि यू नो जापानीज़ गाड़ियों में वो सोल नहीं रहती। with the newer bikes especially, even the S1000 and all German bikes भी, the bike has no soul. It feels proper like a machine. It's built to do this, it'll do this type. But as much as crossplane में जैसा soul है बोलता हूँ मैं, you know this thing तो it's like a fucking human being, man. I mean it misbehaves with you. चलते चलते बंद हो जाती है कुछ ना कुछ, you know you get that emotional connection with this bike. And lots of people who उनके दादा चलाए, बाबा चलाए, बच्चे चलाए, you know more than the value of the bike, it's an emotional connection. तो ये गाड़ियों की एक अलग ही सोल है, एक अलग ही बोलते ना, इट्स लाइक एक ह्यूमन काइंड ऑफ बॉन्ड बन जा रहा है इससे, यू नो। एंड फॉर क्रूजिंग दिस थिंग 6th गियर में डालो आप 80-90 पे, ओ हो बर 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 बर, द वे दिस थिंग साउंड्स इज जस्ट सो स्वीट मैन। सो या आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। मीटरां चालू करना है अब तो। एनीवेज अपन जा रहे किधर? अपन जा रहे फसलांसर में। फसलांसर में हमारे हैदराबाद के नंबर 1 RD मैकेनिक रहते। His name is Altaf. You guys must have heard of him, but if not, you're hearing it now. So Altaf bhai is basically a mechanic who does all sorts of bikes, but RD 350 is like his speciality. I mean शहर में कहीं भी चल जाओ RD 350 बोलते, खाली कलर टीवी में से आवाज़ आती है अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, you know, because I have seen it first hand। क्या कि बंदूक ला के दनादन सेट करके दियो ना गाड़ी मेरे को 5 मिनट में से, you know he's a legend when it comes to RD 350. That's why we are going to get some gaskets and all change. Yes, oil leaks are going to be a part of your life if you own a 2-stroke. कितना भी कर लो तेल तो गिरने वाला है, you know. It's like
they kind of mark the territory types रहता हो उसे, you know. Should always keep a lookout on your. चलो जी बड़े भाई. That's it. And yes, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम ही हो गई भाई, आई नो. दूसरे चीज़ों में बिजी है अपन. You should have seen the excitement on my dad's face when he saw this bike. He's like, कहीं को लाया मौत का कुआं. What time lots of people used to die on this because brakes नहीं, कुछ भी नहीं, you know, एकदम डेथ मशीन रही थी इन्हें. RD होता रैपिड डेथ, हालांकि that's race derived. अपने लोगों के abbreviations अलग ही लेवल के रहते हैं. Yep, we are here at Altaf Bhai. I think Altaf Bhai is not here. Altaf Bhai नहीं है क्या? खाना खाने गए? He's gone for lunch. Let's just wait it out till he's here and